Hello everyone, how are you? I think you will be fine. Okay, so without any delay, let's start a new topic. Okay, which is belongs to chapter pressure. Okay, so at first we have to know about what is pressure. So according to the definition of pressure, okay, suppose that if I will take this piece of object, can you see this, and if I will apply a force vertically just like that, perpendicularly or vertically or normally, you can say that, okay, at a confined area, it means what? I am applying a certain magnitude of pressure. Okay, so according to the definition, force per unit area is called pressure. Okay, so according to the definition, pressure is equal to perpendicular force exerted on per unit area is called pressure. Okay, so this is all about pressure. Now, pressure exerted by a confined liquid is P is equal to rho G and H, where rho is the density of the liquid, G is equal to acceleration due to gravity. Is that clear? Acceleration due to gravity. And H will be the depth of the liquid. H will be the depth of the liquid. So how it comes? So we will prove it today and we will study about that. Okay, so चलिए, कहने का मतलब है कि प्रेशर जो है, एक लिक्विड कितना प्रेशर डालता है तो उसको हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, रो जी एच. रो जो है वहाँ लिक्विड का डेंसिटी है, जी जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच जो है वो डेप्थ है या हाइट बोल देंगे लिक्विड कॉलम का. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं ये हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते हैं तो आज आप सीख सकते हैं यहाँ पे. तो आप बने रहिए इस वीडियो पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Suppose that a liquid is filled inside this container. Suppose that. Okay. Now, if you will take a plain circular surface just like that here, what will happen? Maybe it will float. Is that clear? So, you have to exert a force perpendicularly in this area. Then what will happen is it goes down. Okay, suppose that it goes till here. It goes till here. So the pressure exerted by this liquid column, means what liquid column? The liquid present inside this area. The liquid present inside this area, that one is the liquid column. So what pressure exerted by this liquid column? So this surface right now is there, the surface is present here. So in this surface the liquid exert pressure. Is that clear? So suppose that this cylindrical shape of liquid column is ABCD. Now we are pushing this surface till H depth or H height, whatever you can say that. It means this will be the height. Okay, now if I will tell you then what is the pressure exerted by this liquid column, then you will tell perpendicular force.
by the surface AB, or that perpendicular force is also known as thrust. So you can write here thrust exerted by surface AB, यानी कि AB के द्वारा, यानी इस सरफेस के द्वारा जो थर्स्ट परपेंडिकुलरली अप्लाई होगा एक कन्फाइंड एरिया में, यूनिट एरिया में, वही प्रेशर को डिफाइन करेगा। तो अब ये कितना, कौन सा थर्स्ट, अब यहाँ ये जो थर्स्ट है कौन सा थर्स्ट होगा, यानी कि कौन सा फोर्स होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट है, इस लिक्विड कॉलम का वेट जो है वही यहाँ पे थर्स्ट का काम करेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं प्रीवियस वीडियोस में मैंने हर बार बताया है कि वेट जो है, वेट इज अ टाइप्स ऑफ फोर्स, क्योंकि वेट बराबर होता है mg, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट को फोर्स बोलते हैं। तो इसलिए वेट भी एक टाइप ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे थर्स्ट एक्सर्टेड बाय द सरफेस AB हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ABCD, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम वॉल्यूम का बात करेंगे तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम का अगर आपसे फॉर्मूला पूछेंगे तो आप ये कहेंगे कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि आप देखिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा क्या है, यहाँ पे एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ के जगह में हम एरिया लिख सकते हैं इस इक्वेशन के मदद से, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू हम यहाँ पे एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्कल है और एक सिलेंडर बना हुआ है, तो चलिए हम लोग सिलेंडर के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए, अगर आप 1 रुपए का कॉइन लेते हैं, देख रहे हैं ये 1 रुपए का कॉइन, ये एक सर्कल है, तो इसका अपना एक एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे बहुत सारे 1 रुपए का कॉइन अगर आप इकट्ठा करके अगर ऐसे रखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, तो एक सर्टेन हाइट का एक आपको सिलेंडर मिल रहा है, देख पा रहे हैं आप, है ना। तो इसी को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये एक 1 रुपए का कॉइन है, इस पर बहुत सारा कॉइन रखेंगे तो एक h हाइट का सिलेंडर मिल जाएगा। अब बताइए तो सर्कल, ये जो सर्कुलर फेस है उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर इस h को मल्टीप्लाई कर, सॉरी, अब इस एरिया को h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, और ये पाई आर स्क्वायर h ही तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है ना। ये एक चीज हो गया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास का वैल्यू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर यदि हम यहाँ पे अगर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखे, अब देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय जी, ओके, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय जी। तो क्या होगा आपका, देखिए m इंटू जी, डेंसिटी, यहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी को रो ले लेते हैं तो रो, और वॉल्यूम को v ले लेते हैं तो डेंसिटी, इसके बाद g से इस साइड मल्टीप्लाई किए हैं तो g से हमको उस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए तो mg क्या हो गया, mg वेट होता है ना, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम mg हो गया। तो ये एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू रो भी जी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ वॉल्यूम बराबर, यहाँ से आ जाइए, वॉल्यूम के जगह में a इंटू एच लिख सकते हैं कि नहीं, एरिया इंटू हाइट। सो
F is equal to rho. In place of V we can write here A into H. So A into H into G. अब आप क्या करेंगे, आपको ये तो आपको फोर्स का वैल्यू निकल गया कि वो कितना फोर्स, कितना थर्स्ट लगाएगा। अब एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, तब ना हमको पता चलेगा प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर निकालने के लिए दोनों साइड हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बोथ साइड बाय ए, सो F बाय ए, दिस विल बिकम प्रेशर। सो इफ यू विल डिवाइड दिस साइड ए, सो यू हैव टू डिवाइडेड बाय ए दैट साइड ऑल्सो। सो ए कैंसिल हेयर। सो F बाय ए, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी और रो जी एच. So this will be the pressure exerted by a confined liquid with its liquid column. This is all about pressure exerted by a liquid column. P is equal to rho GH, where rho is the density of that liquid, G is equal to acceleration due to gravity, and H will be the height of that liquid column. That's all. है ना मज़ेदार? तो चलिए ऐसे ही फिर से मैं एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक बने रहिए एजुकेशन सैटेलाइट पर। थैंक यू एवरीबॉडी।